माइक आगे करे मैं अपने आखिरी बार बोला माइक आपने माइक चलिए चल। खुदावंद खुदा फरमाता है, मैं भी देवदार की बुलंद चोटी लूँगा और उसे लगाऊंगा, फिर उसकी नर्म चाकू में से एक कोपल काट लूँगा और उसे एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा। मैं उसे इसराइल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा और वो शाखें निकालेगा और फल लाएगा और आलीशान देवदार होगा और हर किस्म के परिंदे उसके नीचे बसेंगे। वो उसकी डालियों के साया में बसेरा करेंगे और मैदान के सब दरख्त जानेंगे कि मैं खुदावंद ने बड़े दरख्त को पस्त किया और छोटे दरख्त को बुलंद किया, हरे दरख्त को सुखा दिया और सूखे दरख्त को हरा किया। मैं खुदावंद ने फरमाया और कर दिखाया। खुदावंद के खड़े और सुने जाने को आमीन। आज का दूसरा ग्रंथस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस से सुनकर दूसरा खाता है। 5वां बाब 6वीं आयत से 10वीं आयत तक आपने पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। हवाला मैं बता देता हूँ, दोहराना नहीं है। और ये जानते हैं कि जब तक हम वतन के वतन में हैं, खुदावंद के हाथ से चला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं न कि आँख देखे पर। गर्ज हमारी खातर जमा है और हमको वतन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो व जला वतन उसको खुश करें, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्त अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने कामों का बदला पाए जो उसने वतन के वसीला से किए हों, वह भले हों व बुरे। आमीन। तेरी
جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو پھر فور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سایہ میں بسیرا کر سکتے ہیں، اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا سننا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے ایمان کا اقرار نقایہ کا عقیدہ یہاں پہ درج ہے۔ سب مل کر کہیں گے، میں ایمان رکھتا ہوں شاباش آسمان و زمین اور دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، وہی ایک نام یسوع مسیح کا جو پاک ہے اکلوتا بیٹا ہے۔ کل عالموں سے بیشتر اپنے باپ سے معلوم، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ موجود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جبر ہے، اس کے وسیلہ سے کچھ چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا اور اس کی قدرت نے کموالی مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا اور بننے اس کے میں ہمارے لیے مصلوب ہوا، اس نے تو اٹھایا اور نفر ہوا اور پیچھے سے پاپوں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور آپ کی لہر پر بیٹھا ہے، وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی لعنت کے لیے پھر آنے والا ہے، اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر جو خدا سے زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے ثابت ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبی کی زبانی بولا، میں پاک آپ کی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں اور مردوں کی قیامت اور آئندہ زمانے کی نجات کا انتظار کرتا ہوں۔ آمین۔ خداوند آسمانی باپ، ہم سب اقرار کرتے ہیں انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں، لیکن جب تیری قوت ہمیں ملتی ہے تو اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے پاکی کی رہنمائی ہم سب کو دے تاکہ ہم ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ ساری کلیسیا کے لیے حاضر جماعت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو لوگ اس وقت کلام مقدس کی حقیقتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں، تو ان سب کو اپنی پناہ ملے تاکہ وہ تیرے کلام کو سمجھ سکے، انہیں اپنی عقل دانش و فہم عطا فرما۔ شکر گزاری کو سن خدا باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ جماعت بیٹھ جائے۔ خدا کا خالق ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں شامل کرتا ہوں، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج پھر خدا ان کے گھر میں آئے تاکہ ہم مل کر خدا ان کی تعظیم کر سکیں، اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ ہمارے وہ لوگ جو بیرون ملک ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس وقت نہ ہو تو جو ریکارڈ کی ہوئی عبادت ہوتی ہے وہ اس کو سنتے ہیں۔ میں اس وقت
कराची में जो हमारी बच्ची सरीना है उसके ख़ानदान के लिए शुक्र करते हैं। उसने कहा, कल मैसेज दिया कि आप ऑनलाइन दुआ करें, इबादत को रिकॉर्ड किया करें ताकि हम उसमें शरीक हो सके, देख सकें। आप लोग बाबरकत लोग जो इस वक्त आज़ादी से खुदा के घर में बैठ कर कलाम सुन रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो चर्चिस में इबादत में जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते। कुछ जगहों पर अभी भी चर्च बंद है। आप शुक्र किया करें खुदा का कि खुदा ने आपको ये मौका बख्शा है। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप मुबारक लोग हैं जो हमदो सना कर रहे हैं। पिछले हफ्ता में खुदा के बंदा बरनबास का दिन। आने वाले दिनों में हम कहत ज़दा इलाकों के लिए भी दुआ करें, कहत के खात्मे के लिए। कहत का मतलब है रोटी, खाने पीने की चीज़ें ना मिलना, मुयस्सर ना होना, पैदावार ना होना। आज के तीनों हवालों पर अगर आपने गौर किया हो तो उसमें दरख्तों का बड़ा जिक्र है, पत्तों का बड़ा जिक्र है। ये मौसम भी शजरकारी का मौसम। आप अपने घरों में अगर ज़मीन मुयस्सर नहीं तो गमलों में पौधे ज़रूर लगाएं। अगर आप खुश होकर दरख्त लगाना चाहते हैं, हम आपको इजाज़त देते हैं, इधर चर्च के कंपाउंड में आए, वहाँ आके लगाएं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? हवाला निकालने पहला। अभी जो हवाला पढ़ा गया मरकज़ की इंजील से, ये भी निकाल लें। पहले इसी पे गौर कर लेते हैं। मरकज़ की इंजील, ये मरकज़ की मार्फत लिखी गई है, इंजील यीशु की है, मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई है। और इसमें आज का जो हवाला है इसका जिक्र पौधों के साथ है, पत्तों के साथ क्यों है? बड़ी सादा सी बातें हैं, आसान करके बताऊंगा। आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ। आज से कलर भी बदल गया। ये देखिए, इस स्टोल मैंने और आदिल रशीद साहब ने पहना, ये ग्रीन है। मेरे हाथ में पेन भी ग्रीन है। एक खतून कभी ला के दिया करती थी मुझे मुख्तलिफ कलर्स के पेन। कुछ इक़दार आप सब लोग भूलते जा रहे हैं, वो खतून को नहीं समझ आए। तो मैं जब कलर बदलता था तो रेड होता था तो रेड कलर लेके आता। आज ग्रीन कलर बढ़ने, जिस्म में बढ़ने को ज़ाहिर करता है। मरकज़ की जी खोले हवाला। आपने सादा बातें करूँगा इसलिए आप फिक्र नहीं करना। कलाम में खुदावंद यीशु मसीह उगने वाले बीज की मिसाल देते हैं। बीज पैदावार के लिए जमीन पर जो पौधा, गेहूं या गन्नम या धान, चावल, कोई भी पौधा, सब्जी, तरकारी का लफ्ज़ यहाँ लिखा है। आजकल लोग भूल गए, आजकल तरकारी नहीं कहते, आजकल वेजिटेबल्स है ना। हमारी माएँ सादा की तरकारी कहते हैं। और बाइबल में भी सादा बातें लिखी हुई। देखिए खुदा यीशु मसीह ने ये मिसाल दी, तमसील दी। तमसील क्या है? तमसील है किसी हकीकत को समझना। हकीकत को समझने के लिए पैराबल इस्तेमाल किया जाता है, तमसील दी जाती है सबक सिखाने के लिए। यीशु मसीह ने यहाँ पे सबक सिखाया। उसने कहा खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले इस नियत के साथ कि ये उगेगा। बीज डाले और रात को सोए, दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने जमीन आप से आप ही फल लाती है। जो बीज बोता है वो खा रात को सोए आराम से, दिन को जल्दी उठे, जो मर्जी करे। जो पैदावार है, जो बीज है, जो उगने वाला है, उसने अपने जमीन में उगाना है उसको। मैंने और आपने नहीं। फिर पढ़ना चाहता हूं, गौर से देखें। अगर आपको शौक है
पौधे या फल लगाने का हमें, तो फिर आप इसको समझते हो। जब हम कहीं से लेके आते हैं, पौधा लगाते हैं, कोशिश हमारी होती है कि इसकी जो जड़ है ना वो नंगी ना हो जाए, मट्टी में जाए जल्दी। बीज जब हो जाते हैं फिर हम ध्यान रखते हैं कि कोई चीज़ खा ना जाए। आमतौर पर जिनके घर में मुर्गी है ना वो जल्दी खा जाती हैं वो बीज, फिर उगता नहीं। तो बीज बोने वाला जो होता है उसको फिक्र जरूर होती है कि जो बीज मैंने बो दिया वो गए, लेकिन 28वें में लिखा है जमीन आप खुद ब खुद आप फल लाती है। पहले क्या होता है, पहले पत्ती निकलती है, जमीन से निकल आती है, जल्दी से पत्ती निकलती है, फिर बाले, फिर बालों में तैयार दाने। अगर आप थोड़ा बाहर निकलें तो आजकल लगाए जो फसल है, तो बता सकता है कौन सी फसल है? गंदम, गंदम तो काटी गई है, चावल, चावल, अभी चावल, धान, और वो पानी में लगाया जाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है पहले पत्ती निकलती है, फिर बाले, फिर बाले में तैयार दाने, और फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिर और दराती लगाता है कि उनके काटने का वक्त आ पहुंचा। हर काम का देखिए वक्त है। वो बीज बो के उसकी ख्वाहिश होती है कि जल्दी जल्दी के पत्नी देखना चाहता है, वो मेहनत करता है। वो खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप जब उसमें पैदा हो जाएं तो फिर फल आए। लेकिन अगर हम छोटे रह के वो नहीं रह जाते हैं तो फिर लोग मजाक करते हैं। वो फल क्या है? मेरी और आपकी जिंदगी में मोहब्बत का फल, प्यार का फल, बर्दाश्त का फल, सब्र का फल वो है नहीं है, आजकल तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए खुदा यीशु मसीह तमसील के साथ उन्हें बताते हैं। फिर उसने कहा, यीशु ने कहा, हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दे? लोगों ने यीशु से सवाल किया, अपने शागिर्दों से बातें कर रहे थे यीशु मसीह, तो उन्होंने सवाल किया। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें और किस तमसील में उसे बयान करें? लिखा है वो राई के दाने की मानद है कि जब जमीन में बोया जाता है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है। राई का दाना बिल्कुल छोटा सा होता है लेकिन सख्त बड़ा होता है, टूटता नहीं है, छोटा होता है बहुत। और खुदा के कलाम में लिखा है जब राई का दाना बीज बो दिया जाता है जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उग कर सब तरकारियों से, जितनी वहां और सब्जियां चीजें लगाई गई हैं, सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साया में बसेरा कर सकते। कितनी बड़ी बात है। मैं और आप जब हम अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं ना, फिर हम फल नहीं लाते, फिर हमारा साया भी नहीं होता। जब मैं और आप अपने आप को छोटा बनाते हैं कि हाँ जी मैं तो छोटा सा खादम हूँ, छोटा सा अदना सा बंदा हूँ, खुदा का अतनी सी बंदी हूँ, तो फिर आप वो लोग होते हैं कि आपके साया से दूसरे लोग असुदा होते हैं। कहाँ लिखे? बाइबल में लिखा, पढ़ने लगो फिर। मगर जब बो दिया गया तो आप उग कर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है। छोटा सा भी ऐसी बड़ी डाल में निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साया में बसेरा करते हैं। और वो उनको इस किस्म की बहुत सी मिसालें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता। मैं कोशिश करता हूं कि सादा कलाम आपके साथ बयान करूं ताकि आपको समझ आए। समझ आती है आपको? वैसे मेरी बात सारे बहुत बताएंगे मुझे, जिसको नहीं आती वो भी बता दे। जिसको समझ आती है वो तो फल ले आता है, जिसको समझ नहीं आती वो कई दफा कहता है पादी साहब ने मैंने ला के गल, भाई मैंने क्यों लगा के करनी है, मेरी आपकी क्या दुश्मनी है भाई,
कलाम की बात है, कलाम में लिखा है, वो उनको इस किस्म की बहुत सी मिसालें दे दे कर समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था और बेतफसील उनसे कुछ नहीं कहता था, ताकि वो सही मतवाजी मानी समझ सके, मतलब अंदर छुपा होता था, हकीकत को समझ सके। लेकिन खलवत में, अकेले में अपने खास शागिर्दों से सब बातों के मानी बयान करता था। अब यही बात खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से कई सौ साल पहले हिजकिय्याह नबी के सहीफे में लिखी गई, खोले जरा, ताकि आपको पता चले कि जो हवाले मैं पढ़ता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, उनकी आपस में मुताबिकत क्या है, तल्लुक क्या है, रिश्ता क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है, क्यों तीन हवाले पढ़े जाते हैं। हिजकिय्याह नबी के सहीफे में, क्योंकि ये किताब हिजकिय्याह नबी का सहीफा, यशायाह नबी का सहीफा, हम इनको कहते हैं सहीफुल अंबिया, और कुछ को हम कहते हैं बड़े अंबिया और कुछ को छोटे, मतलब उनका अरसा छोटा था। अंबियाए असगर और अंबियाए अकबर, बड़े अंबिया में आते हैं। और चूंकि जब वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बारे में बात कर रहे थे, तो 17 बाब की 19वीं आयत में पढ़ूंगा, फिर आगे जाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आज का हवाला जो पढ़ा गया वो क्यों पढ़ा गया। 19 आयत में लिखा है, बस खुदा यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, वो मेरी ही कसम है जिसको उसने हकीर जाना, और वो मेरा ही अहद है जो उसने तोड़ा, मैं जरूर ये उसके सर पे लाऊंगा। जो लोग उसका अहद तोड़ते हैं, उसकी बातों को रद्द करते हैं, उनको सजा मिलती है जरूर। और कहा, मैं अपना जाल उस पर फैलाऊंगा, वो मेरे फंदे में पकड़ा जाएगा और मैं उसे बाबल को ले आऊंगा। ये बनी इस्राइल के बारे में कहा गया। बनी इस्राइल ने अपने खुदा, अपने खालिक, जिसने उसे अपनी गोद में उठाए रखा, अहद तोड़ दिया। उसने कहा, मैं फिर इसे वहां से पकड़ूंगा जहां जाति से रह रहे हैं और बाबल में ले आऊंगा। बाबल में ले आऊंगा सीर करके, जहां वो लिखा कि बाबल दिए नहरा थे बैठे जरूर सयोन कर यार रोंदे टाइम मार। और वो कहता, मैं उन्हें वहां ले आऊंगा, और जो मेरा गुनाह उसने किया है उसकी बाबत मैं वहां उससे हुज्जत करूंगा। उसके लश्कर के सब फरारी तलवार से कत्ल होंगे, और जो बच रहेंगे वो चारों तरफ गंदा हो जाएंगे, और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने ये फरमाया है। प्रागंदा हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, पूरी दुनिया में फैल जाएंगे डर के मारे। लेकिन अगला हिस्सा जो पढ़ा गया वो उम्मीद वाला है, वो खुशहाली वाला है, वो बहाली वाला है, बदहाली वाला नहीं है, खुशहाली वाला। क्या लिखा है वहां पे? खुदावंद फरमाता है, मैं भी देवदार की बुलंद चोटी लूंगा और उसे लगाऊंगा ऊंचे पहाड़ पर। हैकल ऊंची जगह पे है जो बर्बाद हो चुकी है। मैं भी देवदार की बुलंद चोटी लूंगा और उसे लगाऊंगा, फिर उसकी नरम शाखों में से एक कौंपल काट लूंगा और उसी कौंपल में से लिखा, और उसे एक ऊंचे और बुलंद पहाड़ पर लगाऊंगा। ये इशारा यीशु मसीह की तरफ, ठीक है। और इस्राएल से कौंपल ले लूंगा, उसे ऊंची जगह पे, बुलंद पहाड़ पे लगाऊंगा। मैं उसे इस्राएल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा, और वो शाखें निकालेगा और फल लाएगा, और आलीशान देवदार होगा। जो कहते हैं कि त्यार दी लकड़ी है ना, कहते हैं जहां बैठे भी हैं, ये त्यार दी लकड़ी से लफ्ज है देवदार, ये दरख्त है। यहां तशबीह दी गई, यहां इशारा दिया गया। क्यों दिया गया? आलिशान देवदार होगा, जिसकी शान बहुत बुलंद बड़ी होगी,
और हर किस्म के परिंदे इसके नीचे बसेंगे। जो भी ईमान लाएगा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए, पूरी दुनिया से, खा कोई भी है, किसी इलाके में भी रहता है, कैसी भी जगह है, जैसी भी उसकी हालत है, वो इस दरख्त के साया में बसेरा करेगा, उसके नीचे आ जाएगा, जैसे मुर्गी के परों के नीचे उसके बच्चे आ जाते हैं। हर किस्म के परिंदे, हर कौम में से लोग उसके पास आएंगे, उसकी जो डालियां हैं उसके साया में बसेरा करेंगे। मैदान के सब दरख्त जानेंगे कि मैं खुदावंद ने बड़े दरख्त को पस्त किया। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो बड़े दरख्त हैं फल नहीं लाते लेकिन साया देते हैं, लेकिन जो छोटे दरख्त हैं, एक पास्टर उसमें देख ले, कुछ तो मुश्किल के हाथ के लगे हुए, कुछ एक दो पादी BS एप्पल के हाथ के भी लगे हुए। छोटे दरख्त फल भी देते हैं और साया भी देते हैं। जब बाहर काम हो रहा था तो हमारी कोशिश होती थी कि साया के नीचे वहां जाके जगह जो सायादार है, जहां दरख्त है, वहां चीजें को रखें ताकि उन्हें धूप ना लगे। साया छोटा दरख्त भी देता है, लेकिन उसमें एक और खूबी होती है कि वो फल भी देता है। हर दरख्त बड़ा हो या छोटा हो, जो भी शायद पढ़ रहे गौर से सुने, हाईलाइट करें। और मैदान के सब दरख्त जानेंगे कि मैं खुदावंद ने बड़े दरख्त को पस्त किया, छोटे दरख्त को बुलंद किया। जिसे लोग समझते थे कि ऐसे ही है, आम है। मिसाल के तौर पे दाऊद, उसके बड़े भाई थे, जवान थे, लंबे थे, दिलेर थे, जिससे बड़े बड़े थे। शामिल उनको पकड़ के बसा करना चाहता था, खुदा ने कहा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एंड पे रह गया छोटा सा, दाऊद का कद छोटा था और दाऊद रह गया। यीशु से कहा तेरा और बेटा कहता है वो तो बाहर ही रहता, चरवाहा है। शामिल ने कहा उसको बुलाया, उसको बुलाया। खुदा ने कहा ये है जिसको मैंने चुना है, ये छोटा दरख्त, इसको चुना है, आगे बढ़, इसको मसा कर दे। और खुदा के बंदा शामिल ने उस छोटे से दाऊद को मसा कर दिया, बादशाह भी बना दिया, नबी भी बना दिया। और खुदा ने कहा कि ये बंदा मेरा मन पसंद है, काश मेरा उसके मन पसंद हो। कैसे बनेंगे? खूबियों से बनेंगे ना, अच्छे कामों से बनेंगे ना, गलत बातों के वसीले से नहीं बन सकते। बॉस की नज़र में तो आप बड़े अच्छे होंगे, जो शिकायतें लगाता है ना अपने बॉस को जाकर, फलां बंदे की भी, उस वक्त तो वो बड़ा तरक्की कर रहा था, लेकिन खुदा की नज़र में वो गिर जाता है, लोगों की नज़र में गिर जाता है, उसकी इज्जत नहीं रहती। छोटे दरख्त, मैदान के सारे दरख्त का, बड़े दरख्त को पस किया, छोटे दरख्त को बुलंद, हरे दरख्त को सुखा दिया। ये इसका कमाल है, हरे दरख्त को सुखा दिया, सूखे दरख्त को हरा कर दिया। मैं खुदावंद ने फरमाया और कर दिया। इसलिए अगर आप हरे दरख्त है ना, फल लाए, अच्छे काम करें। अच्छा, कुरिन्थियों की कलीसिया को देखते हैं कि पौलुस रसूल यहाँ पे क्या बात करते हैं इस तलक से। 10वीं आयत, छठी आयत, बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम वतन के वतन में हैं, खुदा के यहाँ जिला वतन है। जिला वतनी की जिंदगी जो लोग बसर करते हैं ना, वो खुश नहीं होते वहां। बता सकता है कोई कि आजकल कौन सा ऐसा बंदा है पाकिस्तान का जो जिला वतन है? हाँ जी, बोले बोले ना डरे। नवाज शरीफ। वो वहां खुश नहीं है, वो पाबंदी में है। अपने घर में, अपने मुल्क में, अपने देश में, अपने शहर में आप आजाद
जिला वतनी की जिंदगी ठीक नहीं है। मैं और आप असली वतन से जिला वतन में हैं, अपने वतन में नहीं है। कहता है क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है पर हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। उसकी वजह क्या वो नीचे बताया गया। इस वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो खा जिला वतन, उसको खुश करे। किसको? बोले बोले किसको? और मैं और आप इस दुनिया में लोगों को खुश करते रहते हैं, फिर भी लोग खुश नहीं होते। घर वालों को खुश करते रहते, सारे घर वाले भी नहीं खुश होते, सारे रिश्तेदार भी खुश नहीं होते, सारे मेंबर भी खुश नहीं होते। ये काम की बात है। देखें, इस वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो या जिला वतन, उसको खुश करे, खुदा को खुश करे अपने कामों से, अपनी गुफ्तगू से, अपने किरदार से, अपने रवैये से। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हैं। अब मैंने और आपने अपने आप से सवाल करना है। आज के मैसेज का आखिरी क्वेश्चन आपके साथ ये है कि मैंने और आपने अपने आप से पूछना है, हर शख्स का, औरत है, मर्द है, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, जैसा भी क्यों नहीं, हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाएगा जो उसने बदन के वसीले से किए हैं, खा भले हो खा बोले बोले बुरे हो। तो अब आपने देखना है कि मैं और आप अपने इस बदन में रह के भले काम करते हैं या बुरे काम करते हैं। भले करेंगे तो बुराई होगी, बुरे करेंगे तो सजा पाएंगे। यही क्वेश्चन अपने साथ लेके जाए और आने वाले वक्त में आज से कोशिश करें कि मैं और आप इस बदन में रहते हुए भलाई के काम करें, दूसरों की बेहतरी के लिए काम करें, ताकि खुदावंद को खुश करें, लोगों को खुश ना करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आए हम खुदावंद की तारीफ